ডাঙ্গুজোত বন্যা বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনে বিজেপি সাংসদ রাজু বেশ ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন 2 লক্ষ টাকার আর্থিক সাহায্যের। ভারত নেপাল সীমান্ত সংলগ্ন দার্জিলিং জেলার শেষ প্রান্তে অবস্থিত বন্যা কবলিত ডাঙ্গুজোত এলাকায় সোমবার পরিদর্শনে আসেন দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বেশ। এদিন তিনি ক্ষয়ক্ষতির পরিস্থিতি স্বচক্ষে পরিদর্শন করেন এবং দুর্গত পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলেন। সাংসদ জানান, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী সমস্ত প্রয়োজনীয় সহায়তা দুর্গতদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। রাজু বেশ ব্যক্তিগত উদ্যোগে ডাঙ্গুজোত এলাকার জন্য 2 লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি তিনি দুর্গত পরিবারগুলির জন্য রাতের খাবারের ব্যবস্থাও করেন। এলাকাবাসীর সঙ্গে কথোপকথনে সাংসদ বলেন, আমি এখানে এসেছি বন্যার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পাশে দাঁড়াতে। এলাকাবাসীর প্রধান দাবি বন্যা প্রতিরোধে বাঁধ নির্মাণ। আমি এই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখব এবং ভবিষ্যতে বাঁধ নির্মাণের উদ্যোগে নেওয়ার চেষ্টা করব। উল্লেখ্য রবিবার মেচি নদী জলস্তর হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় ডাঙ্গুজোত গ্রাম সম্পূর্ণ জলমগ্ন হয়ে পড়ে। শতাধিক পরিবার বন্যার কবলে পড়ে। বহু বাড়িতে জল ঢুকে পড়ায় খাদ্যশস্য, কাপড় চোপড়, গবাদি পশু খাদ্য নষ্ট হয়। ঘরের জল ঢুকে পড়ার রান্নার চুল্লিতেও অচল হয়ে পড়ে। ফলে দুর্গতরা চরম অসুবিধার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। অসুবিধা আমাদের এখানে অনেক আছে, পানি ঢুকে গেছে, সব ভেসে গেছে। এখন আমরা সিলিন্ডার ভেসে গেছে, রান্না করে খেতে পাই না। আজকে সকালে রান্না করে খাইনি, খিচুড়ি খাই আছি কাল থেকে। দিয়ে দিত এখন দিবে কি না দিবে ওটা তো আমরা বলতে পারি না। 2 লাখ টাকা ঘোষণা করেছে, দিল হাতে দিল, আমরা কি দিবে না দিবে আবার ওদের বিচার আছে। রেশনের ব্যবস্থা করে দিয়েছে, রেশন আছে। আর কালকে যেগুলো সামান এনেছিল আধাগুলা বেটেছে, আধাগুলা যার হাতে পড়েছে সবগুলো বাড়ি নিয়ে চলে গেল। আমরা গেলাম আরো বলছি কি যে নেম্বারকে বলছি, নেম্বার আছে ওখানে। আমি যে একটা বিস্কুট দিয়ে কি হবে, দাও না, আর একটা দাও, আমাদের বাচ্চা টাচ্চা আছে, চাটা বানিয়ে খাবো। বলছে কি যে একটা দিলাম অত তো ভালো, আর না দিলে কি হতো। হ্যাঁ, একটাই দিয়েছি। আমরা ভাত নি চাই, ভাত চাই না, চাই না। আমরা যেটা সমস্যা হয় যে আমাদের একটা ভালো হয়ে যায়। আমার নাম নাজমা বিবি। यही दिया है कि तब तक ले फिलहाल अभी जो मान्यता है, जो इंसानियत की राहत, जैसे खाना पीना चाहे कोई चीज़ का भी जो राहत दिए हैं वो अभी दिए हैं फिलहाल। और रास्ता ये दिए हैं कि डैम के लिए और रास्ते के लिए आप हमको लिख के एप्लीकेशन दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे ऊपर तक। अब यही तो बोले हैं। और हम लोग का जो समस्या है, अब वो मेन समस्या तो यही है सर कि हम लोग का किसी को घर में मानने तो पूरी गाँव डूबा हुआ है, किसी का पास है, किसी का पास नहीं है खाने को। और बात यह है कि मेन हम लोग का रास्ता और डैम, ये जब तक ले डैम नहीं होगा, बांध नहीं बनेगा, और यहाँ से हम लोग का रास्ता जो यहाँ से अगर एक आदमी जो हमारे सनातन भाई का जो मर जाते हैं उनको लिए ले जाने के लिए, जलाने के लिए, मेची ले जाने के लिए 1.5 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। इससे पहले भी तो आप लोग नहीं, पहले था, हम लिख के दिए थे सर, डैम के लिए। हाँ, डैम के लिए भी, रास्ता के लिए भी लिख के दिए थे। क्यों? हाँ, फिर भी लिए, अभी आज भी लिख के दिए हुए हैं हम। यही बात है सर कि हम लोग का जो सनातन भाई लोग भी जो इंतकाल हो जाते हैं उनको 1.5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है वो दाह संस्कार करने के लिए। पहले जो था तो सीधा चल जाते थे, अभी इधर से रास्ता बंद कर दिया है। हम लोग को इधर से आना जाना सब बंद है। हमारे डांगीजोत वेस्ट बंगाल का लास्ट है, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का लास्ट है सीमाना है। तो आप लोगों का मांग क्या है? मांग हमारा ये सर कि एक रास्ता चाहिए और एक डैम चाहिए, बस यही चाहिए हम लोग को मेन। फिलहाल अभी हम लोग का बचने के लिए बस्ती को ये 2 चीज़ का बहुत ज़रूरी है। क्या बोला है? अब बोले हैं कि ठीक है हम इसका आश्वासन करेंगे, ऊपर से खबर देंगे। अभी तो फिलहाल वही राहत दे के गए, राशन वासन बोले हैं, चावल वाल खाना वाना जो प्रभावित है उनको देने के लिए, यही बात बोले हैं। हमारा नाम MD यूसुफ है, डांगीजोत। देखिए, मैं इस समय दार्जिलिंग ज़िले के और जो है नेपाल बॉर्डर के ऊपर मौजूद हूँ। और यहाँ की जनता जो है इस बाढ़ से बहुत त्रस्त है, क्योंकि यहाँ पे जो बिहार को जोड़ने के लिए सड़क बनी वो गलत सड़क बनी, सड़क ऊंचा बन गया। इसके कारण नदी का पानी जो है पूरा गांव में आता है, गांव से पानी का निकासी नहीं है, और ये पिछले कई साल से हो रहा है। मेरा सरकार से अपील है कि ये रोड जो बना है वो गलत बना है। जिस भी डिज़ाइन ने साइंटिस्ट ने डिज़ाइन किया वो गलत किया है। वो रोड पहले तो तोड़ना पड़ेगा, और क्योंकि गांव के लोग बचेंगे तभी सड़क काम आएगा। तो लोगों ने मुझे बताया
कि एक तो डैम बनाने के लिए, दूसरा सड़क बनाने के लिए। मैंने उनसे निवेदन किया है वो लिखित में मेरे को दे, मैं सरकार से बात करके इस सड़क का क्या करना, और भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो। ये जब भी थोड़ा ज़्यादा बारिश हो जाता है तो ये गांव में ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब आप देखिए स्थिति इस गांव में, जो ये बाढ़ के कारण ये जो पानी आया 2 फीट तक, 2 मीटर तक, मतलब घुटने तक, कमर तक जो पानी आया, पानी एक बार अभी निकल गया। अब इसके कारण जो बीमारियां आएगी, बच्चों को, बुजुर्गों को जो तकलीफ होगी, उसकी हम कल्पना मात्र कर सकते हैं। तो ये प्राकृतिक आपदा जरूर है जो पहाड़ों में आई, लेकिन प्लेन में यहाँ ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये आदमी का बनाया हुआ आपदा है। प्रकृति के साथ दोहन की बजाय जब शोषण करने लग जाते हैं तो प्रकृति अपना रूप दिखाती है। और यहाँ पे दोहन नहीं हुआ, यहाँ शोषण हुआ है प्रकृति का। यहाँ नदियों में जो है बालू माफिया और तमाम तरह की इलीगल एक्टिविटी होती है, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है ये बाढ़ का। मैं गांव वाले से सभी से निवेदन किया हूँ, जो भी आपकी भरपाई है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विधायक, सांसद मिल करके जो हो सकता है करेंगे। मैं सभाधिपति यहाँ के जो टीएमसी के एसएमपी के नेता हैं, मैं उनसे भी, अनिल घोष जी से भी अभी बात करूँगा, अरुण घोष जी से भी। तो हम लोग जो मिल के प्रयास कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से वो करेंगे। मैं सरकार से अपील करूँगा, वो राज्य सरकार से अपील करें। इस गांव की जनता ने हमको वोट दिया है, हमारा फर्ज बनता है कि उनकी सुख दुख में हम जो है शामिल हो। और जो है दूसरी बात, यहाँ पे जो है अभी खिचड़ी की व्यवस्था थी, मैंने बोला खिचड़ी ज़्यादा दिन नहीं खाया जा सकता है, तो आज से इन्होंने जो है यहाँ किचन, कम्युनिटी किचन चालू किया है। मैं स्वयं भी राशन ले करके आज आया था, और उसके अलावा 2 लाख रुपए मैं दिया हूँ गाँव वालों को। ये मेरा फर्ज बनता है, वो मेरा परिवार है। आप भोजन पेट भर के दोनों टाइम खिलाना है। और यहाँ अरविंद जी है, उनको सबने यहाँ का जो है अभी कहते हैं इस पूरे व्यवस्था के लिए उनको प्रमुख चुना है, और मैं ऐसा मानता हूँ कि सुचारू रूप से यहाँ खाने की व्यवस्था होगी। और धीरे धीरे जो है जो भी सरकार की तरफ से व्यवस्था हो सकती करेंगे। दुकानदारों का भी काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है, 100 के आसपास दुकानें, और वो बेचारे बहुत परेशान हैं। तो मैंने उनको कहा है कि आप थोड़ा लिखित में दे, तो उसमें जो भी हो सकता है, मैं कमिट कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो भी प्रयास हो सकता है मैं अवश्य करूँगा। लोग बांध का निर्माण का मांग है, मैंने उनको कहा है बांध बनना चाहिए, वो एक जो है लंबी उसकी समस्या का समाधान वही है। मैंने उनसे निवेदन किया लिखित में दे, मैं जरूर इसके लिए काम करूँगा। देखिए, सांसद विधायक के ऊपर हमला पश्चिम बंगाल में आम बात हो गई है, और ये टीएमसी आज जब सांसद विधायक सड़क पे गांव में उतर करके लोगों की चिंता और सेवा करना चाह रहे हैं, तो टीएमसी उनको मार के भगा रहे। इसका मतलब वो चाहते नहीं जनता का सेवा हो। टीएमसी के लोग यही चाहते हैं सिर्फ भ्रष्टाचार हो, कमीशन हो। इसीलिए जो है कोई आदमी राशन ले करके जनता के बीच जा करके उनकी मदद करने की इच्छा रखता है, तो मदद करना पश्चिम बंगाल में पाप है। ममता दीदी के राज में भ्रष्टाचार करना, कमीशन लेना, जनता को तकलीफ देना, दुख देना, ये जो है उनका यूएसपी बन गया है। सर, आपकी ओर से इस इलाके में क्या क्या कदम उठाई गई है? सारे उठाएंगे। आज जो इतने सारे हाईवे और तमाम तरह की चीज़ें बन रही है, हर घर जल का आ रहा है, कभी मैं विस्तार से बात करूंगा। आज राजनीति करने का दिन नहीं है।